Chemistry from Punjab University, Chandigarh. I belong to Punjab. So today we will discuss one topic, and that topic is carbon and its compounds. Before we discuss the topic, we design index which topic we will read. First topic is about carbon. Second is property of carbon. Properties of carbon. And third is allotrope of carbon. Allotropes of carbon. And last topic is we will discuss hydrocarbon. So first we will discuss carbon. कार्बन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ मिलते हैं? So the board on which you are reading, the clothes you wear, the food you eat or we eat, and even the car in which you ride, all these have one common thing. And what is this thing? All these things are comprised of some elements of carbon. So we can say that all organic things are made up of carbon. Now, in chemistry, the atomic number of carbon is what? Atomic number is 6. And atomic mass of carbon is 12. So from this we can assign the electronic configuration. Electronic configuration of carbon atom is in first shell 2 and in second shell there are 4 electrons. So हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी लास्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी वैलेंसी भी क्या हुई 4 और ये क्या हुआ टेट्रावेलेंट इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन वैलेंट्स आर आल्सो 4. दे आर tetravalent in nature. Valence electron and valency both are same, that is 4. So this is the introduction of your carbon atom. How we can draw? Suppose this is your nucleus, this is the first shell and this is your second shell. In first shell there are 2 electrons and in second shell there are total 4 electrons. So next, move to the properties of carbon. Properties of carbon. A very first property, it is tetravalent in nature. Your first property is tetravalent in nature. They are tetravalent in nature. Carbon is a non-metal. Carbon is a non-metal. This is your second property. And third property, which is the most important property, carbon show catenation. Carbon shows catenation. अब हम यहाँ से देखेंगे कि what is catenation. Catenation एक्चुअल में होता क्या है? अब catenation क्या होता है? In which carbon form a bond with another carbon atom. Carbon form a bond with another carbon atom. In this way, they form a long chain of carbons. And this formation of long chain shows the property that is catenation. This is the most important property of carbon, that is carbon show catenation. And fourth is carbon form covalent bonds.
because in its outermost shell carbon has 4 electrons. तो हम यहाँ से क्या देखते हैं, अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो हमारे पास क्या होएगा, अगर ये कार्बन एटम्स कार्बन अब क्या है 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे 6, प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे हमारे 6. तो जब ये गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो क्या होएगा, जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. तो हम क्या बोलेंगे कि गेनिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज not possible for the carbon element. Similarly, if we talk about that it can lose 4 electrons, जो हमारे आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या उनको लूज कर सकते हैं कार्बन. सपोज अगर कार्बन ने जो लास्ट शेल है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए तो हमारे पास अब क्या रह गया, 6 न्यूट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स एंड वी हैव ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो अब क्या होएगा, जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं और जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं. तो यहाँ पे भी अब जो हमारी स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई. तो हमारे ये लूज ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. तो फिर कार्बन एक्चुअल में करता क्या है, ना लूज करता है ना गेन करता है. तो वो क्या करता है, फॉर्मेशन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म अ कोवलेंट बॉन्ड. तो वो कैसे बनाता है, सपोज लेट्स टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल वी टेक हियर कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन के पास क्या हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस में, दे हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स. और हमें पता है ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 8. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 and 6. तो इसको स्टेबल होने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 2. तो ये क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स किससे लेगा, वो कार्बन से लेगा. कैसे लेगा वो, एक इधर ऑक्सीजन है हमारा, एक इधर ऑक्सीजन है हमारा. इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के लेके. सिमिलरली इस वाले ऑक्सीजन ने भी अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके. और ये कार्बन क्या करता है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस ऑक्सीजन से लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस ऑक्सीजन से लिए. तो इसने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया. सो इन दिस वे दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड विद द 2 ऑक्सीजन एटम एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर कार्बन डाइऑक्साइड. इन दिस वे दे फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड. नेक्स्ट, एलोट्रोप्स. एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. तो हम क्या देखते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. एलोट्रोप फॉर्म ऑफ कार्बन हमारे पास हम मोस्टली पढ़ते हैं डायमंड और ग्रेफाइट. बट थर्ड वन वाला हमारा क्या है, बकमेंस्टर, फुलब्रेन, वो हम थोड़ा हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं. तो फर्स्ट हम देखते हैं डायमंड. अब हमें पता है कार्बन तो नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एज कंपैरिजन टू मेटल्स. बट जो हमारा डायमंड है ये तो क्या बहुत हार्ड है. बट क्या है, ये है तो नॉन मेटल ही. कीपिंग योर माइंड दैट दे फॉर्म अ रिजिड नेटवर्क, 1 कार्बन अटैच्ड विद 4 अनदर कार्बन एटम्स एंड दे फॉर्म अ 3D स्ट्रक्चर. तो जो हमारा डायमंड है वो क्या बनाता है, हमारे पास 3D अरेंजमेंट बनाता है, 3D स्ट्रक्चर बनाता है. ड्यू टू दिस दे आर हार्ड. बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर रिजिड, हार्ड. एंड कहां पर यूज होता है मोस्टली डायमंड, हमारी ज्वेलरीज में, used in the
ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स में यूज होते हैं. सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड. और ये हमारा कार्बन है जो 4 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है. कार्बन अटैच्ड विद 4 another carbon atom to form a rigid structure, 3D structure. That is why carbon is hard in nature. ये हमारा फर्स्ट एलोट्रोप था. अब हम सेकेंड एलोट्रोप पढ़ते हैं जो कि है ग्रेफाइट. अब ग्रेफाइट हमारा मोस्टली कहाँ यूज होता है? हमारे एज अ लेड पेंसिल्स में जो हम यूज करते हैं. इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? 2D. क्योंकि जो हमारा कार्बन होता है वो क्या है? अदर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड होता है और एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है. ऐसे प्लेनर शीट्स बनती हैं. सो जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है? 2D होता है. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेयरएज डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. यूज्ड इन लेड. डायमंड का यूज होता है ज्वेलरीज में. यूज्ड एज लेड इन पेंसिल. सॉरी, इन पेंसिल. ये क्या होगा? रिजिड नहीं होएगा. इसका प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इजी टू ब्रेक. तो ये क्या है? डायमंड से लेस हार्ड होता है और वी कैन से इजी टू ब्रेक. इजी टू ब्रेक. So these all are the properties of graphite and they both are the allotropes form of carbon. Now next move to the hydrocarbons. अब हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं? विच आर कंपोज्ड और फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन. जो हाइड्रोजन एंड कार्बन से मिलकर कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स. इसमें हम 2 टाइप्स के पढ़ते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. अब हम देखते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड. Saturated hydrocarbon are those which contain only one covalent bond or single bond in carbon-carbon atom. Contain one covalent bond or single bond. In which unsaturated, it is also of 2 types. In which double bond and triple bond. Carbon form with carbon double and triple bond. So this is your alkane. Having double bond is alkene and with the triple bond we say alkyne. जनरली अगर हम इनको फॉर्मूला देखें तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फॉर द एल्केन वी यूज CnH2n+2. फॉर एल्कीन वी यूज CnH2n. फॉर एल्काइन CnH2n-2. So these are the general formula for alkane, alkene and alkyne. Here n is the number of carbon atom. So if we take the example for alkane, suppose here n is 1. So CH2 into 1 is 2 plus 2 4. So this is the methane. For carbon 1 we use meth. For carbon 2 we use it. For carbon 3 we use prop and so on. So the name of this compound is methane. Similarly, if we take the example here for, suppose here the value of n is 2. So C2H4. This is your ethene.
Similarly, if here we take the value of NH3, so C3H 2 into 3 is your 6. 6 minus 2 is 4. So here we can say this is your propine. If we draw the structure of propine, how we can draw it? We have 3 carbons with 1 triple bond. How many hydrogens are there? 4. So 1 carbon form 4 bond, 3 and 1 is there. This middle carbon forms 4 bond with the other carbon atoms, 3 with 1 and 1 with this. So we can say that this is all about your hydrocarbons. Thank you.